Good morning, students. Once again, welcome to Home Classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu, Mrs. Anuradha Gupta ji. Dear students of class 8th, subject English, बच्चों आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, पोइम पढ़ेंगे जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सी पोइम्स लिखी हुई हैं, लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो है अ प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ इज एन इंस्पिरेशनल पोइम एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर। ये एक प्रेयर है। पोइम पढ़ने से पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ Tagore is a versatile poet. He was born on 7th of May 1861 and died on 7th of August 1941. Rabindranath Tagore wrote songs, stories, poems, novels, essays, and dramas. Read more about the poet. Rabindranath Tagore was a poet, playwright, novelist, painter, and musician. He won the Nobel Prize for Literature in 1931. The poem has been taken from his collection Gitanjali and is a prayer to the Almighty to make him strong enough to serve others and accept joys and sorrows in the same way. तो जो ये पोएम है ये गीतांजलि में से ली हुई है। गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम written by the Bengali poet Rabindranath Tagore. There are 157 poems in this book and Prayer for Strength is one of them. Gitanjali, Git means songs and Anjali means offering. So Gitanjali means offering of songs to the Lord. Rabindranath Tagore received the Nobel Prize for Literature in 1913 and he was the first non-European who received Nobel Prize. Rabindranath Tagore wrote national anthem of two countries. One is India and another is Bangladesh. Jana Gana Mana is India and Amar Janohar for Bangla and for Bangladesh. Rabindranath Tagore is also known as Gurudev and also known as Bard of Bangalore in Bangladesh. As I told you earlier, Rabindranath Tagore was died on 7th of August 1941. So first we recite the poem Prayer for Strength, which is a song 36 from Gitanjali, and Gitanjali is a collection of poems. This is the prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles, and give me the strength to surrender my strength to thy will with love.
This is a poem, prayer for strength, and we recite the poem. This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, प्रभु से वो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो। वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतनी शक्ति दो कि जो मेरे दिल में गरीबी है उसे जड़ से दूर कर दो, मिटा दो। तो यहाँ पे जो गरीबी है वो पैसों को लेके गरीबी नहीं है। यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि जो भी उनके मन में दूसरों के लिए दया है वो होनी चाहिए, ना कि वो कठोर हों दूसरों के लिए। तो जो भी वो उनके हार्ट में पॉवर्टी है, गरीबी है, उसे वे कहते हैं वो उन्हें जड़ से उखाड़ दो। What image does the line strike, strike at the root suggest? In the line, penury in my heart, what kind of poverty does Tagore refer to? तो यहाँ पे किस तरह की जो गरीबी है वो पोइट कहते हैं उसे ख़त्म करने के लिए। जैसे जो एक वुड कटर है, लकड़ी काटने वाला होता है, वो ट्री को क्या करता है, उखाड़ता है जब, तो वो उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही जो पॉइंट हैं वो गॉड से चाहते हैं कि उनके दिल में जो भी पॉवर्टी है उसे बाय रूट जो है वो ख़त्म कर दें, जड़ से जो है वो ख़त्म हो जाए। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज़ एंड सारोज। अब पॉइंट कहते हैं कि मुझे ताकत दो ताकि मैं बर्दाश्त कर सकूं अपनी खुशियों को भी और गमों को। क्या पॉइंट का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ना ज़्यादा खुश हूँ और ना ही ज़्यादा उदास हूँ। अगर मुझे खुशी मिले तो मैं उसे भी बर्दाश्त कर पाऊँ, उसमें भी उतना ही रहूँ, और अगर ज़्यादा दुख हो तो तब भी मैं ज़्यादा जो है उदास ना हूँ। इतनी मुझे जो है शक्ति दो, इतनी मुझे ताकत दो कि जो भी जॉयज़ हैं, जो भी खुशियाँ हैं और जो भी सारों हैं, मैं उन्हें बराबरी से जो है वो सह सकूं, बर्दाश्त जो है कर सकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज़ एंड सारोज। तो वही कह रहे हैं कि मुझे इतनी ताकत दो, इतनी जो है कि जो भी खुशियाँ हों, अगर दुख हों तो मैं उन्हें इक्वली जो है बराबर से जो है बर्दाश्त कर सकूं। ये ना हो कि जब ज़्यादा खुशी हो तो मैं ज़्यादा ही खुश हो जाऊं और दुख हो तो मैं ज़्यादा ही निराश हो जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली जो भी मेरे जॉयज़ एंड सारोज़ हैं मैं उन्हें टॉलरेट करूं। वर्ड्स एंड मीनिंग। बेयर मीन टू एंड्योर, जॉय मीन हैप्पीनेस, सारो मीन ग्रीफ, रूट मीन सोर्स एंड स्ट्रेंथ मीन पार। ये वर्ड हैं जो पिछले वाले स्टैंजा में आए हुए हैं, जो हमने पढ़े, अभी 2 लाइन्स पढ़ी हमने। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसोन द पोर, और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो ताकि मैं लोगों की देखभाल कर सकूं प्यार और मोहब्बत से। जो भी मैं काम करूं वो इक्वली जो है प्यार और मोहब्बत से करूं, जिसकी भी केयर करूं, इतनी मुझे जो है वो शक्ति दो। यानी कि मैं लोगों की भलाई करूं तो वो फ्रूटफुल हो। फिर कहते हैं वो, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसोन द पोर, अबेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। कहते हैं कि मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी ताकत दो कि किसी भी गरीब आदमी को मैं नकार ना सकूं, उसकी जो है मदद करूं, और
ये भी मांगते हैं कि मुझे इतनी ताकत दो कि मैं किसी भी जो ऐसा इंसान हो जो मेरी इंसल्ट करे उसके आगे जो मैं घुटने कभी ना टेकूं, नॉट बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी ताकत दो कि अगर कोई गरीब हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं, और अगर कोई मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो मैं उसके आगे कभी भी जो घुटने हैं वो ना टेकूं। इंसोलेंट हो गया डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन, जो मेरी रिस्पेक्ट ना करे, जो मेरी इज्जत ना करे, मैं उसके आगे कभी भी जो अपने घुटने हैं उन्हें ना टेकूं, लेकिन जो गरीब है उनकी मैं जो है मदद करूं। वर्ड्स मीनिंग फ्रूटीफुल इज यूजफुल, डिसोन मीन रिजेक्ट, इंसोलेंट rude or insulting, might power, service act of serving. Next, give me the strength to raise my mind high above daily trifles. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे इतनी शक्ति दो, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें हैं मैं उनसे बाहर निकलूँ। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, झगड़े हैं, मैं उनको अपने माइंड में ना लूँ और उनसे बाहर निकलूँ, मैं उनके बारे में ना सोचूं। ट्राइफल्स हो गया इनसिग्निफिकेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट ना हों ऐसी चीज़ों से मैं जो है बाहर निकलूं और उनके बारे में कभी ना सोचूं। ऐसे छोटे मोटी चीज़ें जो भी मेरी लाइफ में होती हैं उनसे मुझे बाहर निकालो, मुझे इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो। Last, and give me the strength to surrender my strength to the thy will love. और कहते हैं कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने आप का जो सब कुछ जो है वो आप पे अर्पित कर दूँ। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं जो भी करूँ वो आपकी मर्ज़ी से करूँ, जो भी मैं काम करूँ, अच्छा करूँ चाहे बुरा करूँ, वो आपकी मर्ज़ी से करूँ। और मुझे इतनी ताकत दो कि जो मेरे अंदर में जितनी भी ताकत है वो जो भी काम हो वो मैं आपकी मर्ज़ी से ही करूँ, जो भी जैसा भी करूँ वो आपकी ही मर्ज़ी से होना चाहिए, और मैं अपने आप को आपके आगे जो है पूरा समर्पित कर दूं। अगर मेरा सर जो है वो झुके, वो सिर्फ आपके सामने ही झुके। हे परमात्मा मेरे सामने प्रेम से अपने सर को झुकाए रखो। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं जो भी अपनी लाइफ में करूँ वो आपकी ही मर्ज़ी से करूँ। मैं हमेशा गरीबों की मदद करूँ, अमीरों के आगे ना झुकूँ, जो मेरी रिस्पेक्ट ना करे उसके आगे ना झुकूँ। मुझे इतनी शक्ति दो कि जो भी मेरे जॉयज़ हैं, सारोज़ हैं, मैं उन्हें इक्वली जो है टॉलरेट करूँ। मुझे इतनी शक्ति दो कि जो मेरे हार्ट में पेनुरी है उसे बाय रूट जो है ख़त्म कर दो, जड़ से ख़त्म कर दो। जो भी पॉवर्टी है, पॉवर्टी यहाँ पैसों को लेके नहीं है, तो वो जो भी है उसे ख़त्म कर दो। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी गॉड से प्रे कर रहे हैं। तो ये थी पोएम प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, जिसे हमने डिटेल से पढ़ा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। ट्राइफल समथिंग नॉट इम्पॉर्टेंट और स्मॉल, सरेंडर मीन्स गिव अप। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या कविता थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, क्या विनती करते हैं प्रभु से। हे प्रभु मेरी ये विनती है आपसे, हे मेरे प्रभु प्रहार कीजिए, प्रहार कीजिए आप मेरे हृदय के दर्द के मूल पर। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सुख और दुख दोनों में सहज रहूं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि दुख हो चाहे सुख हो, मैं उनमें अपने आप को जो है बैलेंस रखूँ। ना ये ना हो कि ज़्यादा दुख हो तो मैं ज़्यादा परेशान हूँ, खुशी हो तो मैं ज़्यादा ही खुश हो जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्यार से, सेवा से भली फलीभूत हो सकूँ। मैं अगर किसी की सेवा करूँ, प्यार से करूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं निर्धनों से कभी मुंह न मोड़ूं और
ताकतों के सामने कभी घुटने ना टेकूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन को प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठा सकूं। तो वही जो कहा कि डेली ट्राइफल्स जो भी हैं, छोटी छोटी बातें हैं, नोक झोंक जो होती हैं, मैं उनसे अपने आप को बाहर निकाल सकूं। और कहते हैं, अंत में कहते हैं कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी शक्ति को अपनी रज़ा सप्रेम समर्पित आप पर कर सकूं। तो लास्ट में वो कहते हैं कि जो भी मैं करूं, जो भी मैं काम करूं अपनी लाइफ में, वो आपकी ही मर्ज़ी से हो। अगर मैं जो भी घुटने टेकूं, जो भी झुकूं, मैं सिर्फ आपके आगे ही झुकूं। तो बच्चों, ये थी पोएम प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, जिसे हमने डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।